अच्छी बात जो हमें पंजाब में देखने को मिलती है वो ये है कि यहाँ पे हमेशा जब भी कोई इंसिडेंट होता है तो पंजाब के लोग ही है जो हमारे साथ खड़े हो जाते हैं। तो अभी जो इंसिडेंट हुआ है, बच्चों को पीटा गया वहाँ पे, तो मतलब वहाँ पे फिर पंजाब के जो लोकल्स है उन्होंने मदद की है बच्चों को बचाने में। मतलब उनके खिलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया गया और उन जो बच्चे हैं उन्होंने क्या किया है वो भी पता नहीं। तो अपने कोई बंदा तैश में आके कश्मीरी बच्चों को पीट रहा है, ये कहाँ का इंसाफ है? मतलब इसको हम जस्टिफाई किस लेवल तक करते हैं? इनका एक एजेंडा है जो मतलब मुसलमान और सिख भाईचारे को मतलब ख़त्म करने की, और ये हर जगह पे ये कोशिशें हो रही है। हमें बहुत सारे पेरेंट्स के भी फ़ोन आए कि बच्चों का, तो हमने यही बोला कि ये बच्चे जो पंजाब में हैं आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, पंजाब इनका दूसरा घर है। ये जो अभी अटेम्प्ट हुआ है ये भी नॉन पंजाबियों ने किया है, तो किसी पंजाबी का इसमें हाथ नहीं है। तो मतलब पंजाब की गवर्नमेंट भी इसमें मतलब उतना एक्टिव नज़र नहीं आई कि मतलब बच्चों को सेफ़ फील किया जाए। लेकिन पंजाब के जो लोकल लोग से जो सिख भाईचारा है वो खड़ा हुआ है। मतलब ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਦਰ ਸਟੇਟ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਬੜੀ ਵਾਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੋ, ਪਾਕਿस्तान चले जाओ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ महसूस करते हो? देखो ये मतलब ये पॉलिटिकल नैरेटिव है, लेकिन अब यहाँ पे ये बात है कि ये वो जिन्ना की जो थ्योरी है वो प्रूव कर रहे हैं, क्योंकि उसने बताया भी था कि हिंदुस्तान के मुसलमान जो है इनको अपनी शिनाख्त नेशनलिटी प्रूव करते इनका दम भी निकल जाएगा, फिर भी नहीं मतलब इन पे कोई विश्वास करेगा। तो हमारा ना पाकिस्तान के साथ लेना देना था ना इनके साथ लेना देना था कश्मीर का, लेकिन उसके बावजूद मतलब जैसे भी सिचुएशंस रही है वो तो बहुत पीछे जाना पड़ा। हिस्ट्री क्या है क्या नहीं है। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ TV 84 ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਮੂਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜੋ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਸੀ T20 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੱਥੋਂ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਏ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਆਈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹ ਧੱਬਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਈ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲਾ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਉਸ ਹਮਲੇ ਤੋਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਾਹੀਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ। ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਿੱਦਿਆ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, MPhil ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸੰਗਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਸਲਾ ਕੀ ਸੀ ਸਾਰਾ। ਫਹੀਮ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਜੋ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋर्ट ਕੀ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ? देखो मतलब पहले तो हम आपका शुक्रगुजार करते हैं कि आपने अपनी चैनल के माध्यम से कम कश्मीरी बच्चों की जो आवाज़ है वो कहीं तक पहुंचाई है। तो और ये सबसे बड़ी बात है जो ये इंसिडेंट हुआ है, ये मतलब एक पहली बार नहीं हुआ है यहाँ पे। मतलब जो कश्मीरी बच्चे बाहर से मतलब पढ़ रहे हैं, जो मतलब बाहर आते हैं, मतलब कश्मीर से बाहर आके पूरे हिंदुस्तान के को मतलब बाकी स्टेट्स में पढ़ते हैं, तो बहुत सारी ऐसी वारदातें हुई हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात जो हमें पंजाब में देखने को मिलती हैं वो ये है कि यहाँ पे हमेशा जब भी कोई इंसिडेंट होता है तो पंजाब के लोग ही है जो हमारे साथ खड़े हो जाते हैं। तो अभी जो इंसिडेंट हुआ है, बच्चों को पीटा गया वहाँ पे,
तो मतलब वहाँ पे फिर पंजाब के मतलब जो लोकल्स है उन्होंने मदद की है बच्चों को बचाने में। अदरवाइज़ जो मतलब वो नॉन पंजाबी जो मतलब वहाँ पे विद्यार्थी जो थे उन्होंने जो अटेम्प्ट किया मतलब बच्चों को पीटा, वो जो मतलब उनकी जो मतलब प्रॉपर्टी है, जो वहाँ पे जो उनके मतलब सामान है, जो भी उनके बेड है, ये सब मतलब बहुत तोड़ के और मतलब बच्चों को पीटा। मतलब वो जो स्टिक्स है, रॉड्स है, उनसे मतलब बच्चों को पीटा है। पुलिस के द्वारा भी मतलब एक्शन हुआ, लेकिन अभी तक कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आए। फ्रूटफुल रिजल्ट इन द सेंस कि इसलिए नहीं आए क्योंकि जो जिन बच्चों ने ये अटेम्प्ट किया था उनके खिलाफ अभी मतलब कोई कार्रवाई नहीं हुई, मतलब उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। और उन जो बच्चे हैं उन्होंने क्या किया है वो भी पता नहीं है। तो अपने कोई बंदा तैश में आके कश्मीरी बच्चों को पीट रहा है, ये कहाँ का इंसाफ है? मतलब इसको हम जस्टिफाई किस लेवल तक करते हैं? तो इसमें मतलब ये सबसे ये है मतलब एक अटेम्प्ट है, मतलब जो अभी हिंदुस्तान में जो मतलब सरकार है, जो भारतीय जनता पार्टी है, इनका एक एजेंडा है जो मतलब मुसलमान और सिख भाईचारे को मतलब ख़त्म करने की। और ये हर जगह पे ये कोशिशें हो रही है, जो मतलब सिख और मुसलमान भाईचारा है कि इसको तोड़ दिया जाए। लेकिन पंजाब के लोगों के हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि जो इस टाइम खड़े हुए इस चीज़ को मतलब डिनाई करने के लिए कि भाई हम खुश हैं, और जो ये हमारे कश्मीरी भाई है, जो कश्मीरी विद्यार्थी हैं, जो भी कश्मीरी काम करने आता है पंजाब में, हम इसके साथ खड़े हैं। तो ये हमें देखने को मिला यहाँ पे, और बहुत ही अच्छी बात है ये। और हम मतलब जो कश्मीर में जितने भी वालिदैन हैं, हमें बहुत सारे पेरेंट्स के भी फ़ोन आए कि बच्चों का, तो हमने यही बोला कि ये बच्चे जो पंजाब में हैं, आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। पंजाब इनका दूसरा घर है। यहाँ किसी बच्चे को कोई ऐसी मतलब ये हैरेसमेंट मतलब फेस नहीं करनी पड़ती। ये जो अभी अटेम्प्ट हुआ है ये भी नॉन पंजाबियों ने किया है, तो किसी पंजाबी का इसमें हाथ नहीं है। तो मतलब पंजाब की गवर्नमेंट भी इसमें मतलब उतना एक्टिव नज़र नहीं आई कि मतलब बच्चों को सेफ फील किया जाए। लेकिन पंजाब के जो लोकल लोग से जो सिख भाईचारा है वो खड़ा हुआ है, मतलब कश्मीरी जो ये मुसलमान कम्युनिटी है, क्योंकि ये टारगेट है, कम्युनिटी टारगेटिंग भी है। मतलब वही बच्चों को पीटा गया है जो मुसलमान बच्चे थे। अदरवाइज मतलब बाकी बच्चे भी थे, बाकी जगहों के बच्चे भी थे, बाकी मुसलमान बच्चे भी थे, लेकिन कश्मीरी मुसलमान जो है दे हैव बीन टारगेटेड, उनको सिलेक्टिवली टारगेट किया गया है। तो इसमें पंजाब के लोगों का बहुत ही अच्छा उन्होंने रोल निभाया, बहुत ही अच्छे से उन बच्चों को सिक्योर फील कराया। और बच्चों ने भी बोला कि मतलब इन्होंने हमें रेस्क्यू किया, इन्होंने हमें अच्छे से बाद में इत्मीनान भी दिया, हम आप लोगों के साथ हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। ਫਹੀਮ, ਜੋ ਬੱਚੇ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ 12th ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਦਰ ਸਟੇਟ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ? ये मतलब सही बात है। मतलब जब वहाँ से बच्चे आते हैं ना, तो पंजाब में ज़्यादा सिक्योर फील करते हैं बाकी जगहों से। जैसे कि यूपी में बच्चे हैं या बाकी जगहों पे बच्चे, वहाँ तो मतलब बहुत डर के रहते हैं बच्चे। लेकिन इसमें रोल कहीं ना कहीं हुकूमत का भी है। उन्होंने भी कभी इस चीज़ को मतलब उस तरीके से देखा नहीं है। मतलब ऐसे बयानबाजी करना, ये कि वो ये ऐसे हैं वैसे है। जैसे मतलब लास्ट ईयर जब वो पुलवामा इंसिडेंट हुआ था, तो उसमें तो विद्यार्थियों का क्या कसूर था, लेकिन यहाँ हरियाणा में हमने देखा पीटा गया बच्चों को, मतलब उनको निकलना पड़ा। उत्तराखंड में हमने देखा, या बाकी यूपी में हमने देखा, या मतलब रेस्ट ऑफ द कंट्री बहुत सारी जगहों पे ऐसी वारदातें दिखने को मिली कि बच्चों को टारगेट किया गया। लेकिन उस टाइम भी पंजाब ही एक जगह थी जिन्होंने मतलब गुरुद्वारे खोले, जिन्होंने घर खोले, कि लंगर दिया, खाना दिया कि आप बच्चों को। और यहाँ जो खालसा एड हैं उन्होंने मतलब हम उस टाइम थे कि उन्होंने हमें पूरा सपोर्ट किया। जो पंजाब के लोग हैं उन्होंने हमें पूरा सपोर्ट किया बच्चों को यहाँ से ट्रांसपोर्ट करने में कश्मीर की तरफ। और वहाँ पे गवर्नमेंट ने कोई रोल नहीं निभाया कि बच्चे यहाँ पे रहे, क्यों जाए वो घर, कि यहाँ पे क्या है, उनको इनसिक्योरिटी क्यों हो रही है। तो इसमें कहीं ना कहीं हुकूमत भी तो इन्वॉल्व है। वो क्यों नहीं बच्चों को मतलब इतना वो ये दे पा रही है कि हम आपके साथ हैं, उनको हौसला दे रही है कि आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है।
पूरा इंडिया आपके साथ है। तो जब आप कहते हो एक तरफ से कि अखंड अंग है, तो कम से कम लोगों को भी तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना। ऐसे बयानबाजी करके मतलब लोगों के मन में एक शक व शुबा पैदा करना, ये अच्छी बात नहीं है। मैं नहीं समझता हूँ कि ये मतलब किसी भी तरीके से ये जस्टिफाइबल है कि बच्चों के मन में या लोगों के मन में डर पैदा करना। तो हम प्यार से रहने वाले लोग हैं तो प्यार से ही रह सकते हैं। लेकिन पंजाब में क्या है, हुकूमत कुछ करे या ना करे, लेकिन पंजाब का जो सिक्खी भाईचारा है वो हमेशा मतलब साथ आता है। और कश्मीरी जो मुसलमान हैं, कश्मीरी जो भी विद्यार्थी हैं, कश्मीरी जो काम करने वाले बाहर आते हैं, उनका हमेशा सपोर्ट किया है और उनके साथ हमेशा खड़े हो जाते हैं। ਫਹੀਮ ਜਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਈ ਕਿ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਬੜੀ ਵਾਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੋ, ਪਾਕਿस्तान ਚਲੇ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ महसूस करते हो? देखो ये मतलब ये पॉलिटिकल नैरेटिव है, मतलब ये मतलब सियासत के द्वारा क्रिएट किया गया नैरेटिव है। तो आम आदमी भी जो ये बोलता है उसको भी पता नहीं होता है मैं ये क्यों बोल रहा हूँ। तो इसके पीछे जो मतलब अभी यहाँ पे जो ये सरकार है, मतलब हिंदू नेशनलिस्ट सरकार है, तो ये उनका नैरेटिव किया गया है कि मतलब जैसे मतलब बहुत सारे कि ये मतलब नैरेटिव है कि मतलब मुसलमान का जो भी मतलब ऐसे है कि मतलब एक हिस्सा कब्रिस्तान या पाकिस्तान, ये चीज़ें मतलब इनमें मुझे नहीं लगता कि मतलब पूरा हिंदुस्तान इसमें बिलीव नहीं करता है। हिंदुस्तान में बहुत अच्छे लोग भी है मतलब जो इस चीज़ का विरोध भी करते हैं। और जब मतलब ये बना भी था, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को रिजेक्ट भी किया था और हिंदुस्तान में रहे थे। लेकिन अब यहाँ पे ये बात है कि ये वो जिन्ना की जो थ्योरी है वो प्रूव कर रहे हैं, क्योंकि उसने बताया भी था कि हिंदुस्तान के मुसलमान जो है इनको अपनी शिनाख्त नेशनलिटी प्रूव करने करते इनका दम भी निकल जाएगा, फिर भी नहीं मतलब इन पे कोई विश्वास करेगा। तो ये चीज़ मतलब जो ये अटेम्प्ट कर रही है उस जिन्ना को प्रूव कर रहे हैं कि वो ट्रू था। तो लेकिन रेस्ट ऑफ द हिंदुस्तान का आइन है, बाकी चीज़ें हैं, मतलब हिंदुस्तान में ऐसे लोग हैं जो मतलब मुसलमानों को इतना, क्योंकि हिंदुस्तान में मुसलमान मतलब बहुत सारे हैं पूरे दुनिया मतलब में कम्पिटेटिव नंबर में मुसलमान हिंदुस्तान में भी है। तो ऐसा कोई नहीं है, लेकिन एक नैरेटिव क्रिएट करना है, नफ़रत का नैरेटिव क्रिएट करना, ये अच्छी बात नहीं मैं समझता हूँ किसी भी तौर पे। लेकिन मतलब बाकी मतलब इसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते कि मतलब पाकिस्तान जाओ, ये जाओ, वो जाओ। देखो मतलब दोनों मुल्क है, तो दोनों मतलब बंटे थे, तो हमारा ना पाकिस्तान के साथ लेना देना था ना इनके साथ लेना देना था कश्मीर का। लेकिन उसके बावजूद मतलब जैसे भी सिचुएशंस रही है वो तो बहुत पीछे जाना पड़ा, हिस्ट्री क्या है क्या नहीं है। लेकिन अभी हर कोई चाहता है कि अमन में रहे। कोई बच्चा यहाँ पढ़ने आता है तो वो क्यों आता है, कुछ हासिल करने के लिए, कि ताकि वो यहाँ से कुछ लेके जाए। तो जब वो यहाँ आता है, अगर ऐसा माहौल दिया जाएगा, उसके मन में डर क्रिएट किया जाएगा, जब वो यहाँ से वापस जाएगा वो क्या सोच के जाएगा, उसके मन में मतलब क्या रहेगा। मतलब आप किसी बच्चे को पीट रहे हो कि पाकिस्तान जाओ, वो जाओ, ये करो, मुसलमान हो, ये हो, वो हो, आप देशद्रोही हो। वो यहाँ पढ़ने के लिए आया था, लेकिन यहाँ से वो एक इम्प्रिंट लेके जा रहा है अपने दिमाग में, तो उसका क्या असर होगा आगे। तो इन चीज़ों पे हुकूमत को ये मतलब सोचने की ज़रूरत है और इन चीज़ों पे एक मतलब कड़ी सख्ताई करने की ज़रूरत है कि ऐसी वारदातें ना हो, इन चीज़ों के खिलाफ एक्शन लिया जाए, ताकि वो लोग भी अपने आप को, जो ये मतलब टारगेटिंग कम्युनिटी है, अपने आप को मतलब स्वीकार फील करे कि नहीं हमारे साथ है कोई। ਫਹੀਮ 370 ਧਾਰਾ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਬੜਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣਿਆ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। 370 ਧਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 370 ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਅੰਡਰ ਅਟੈਕ ਆਈਆਂ ਫੋਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦਾ ਆ? एक तो मतलब हमारा उतना इस पे एक्सपर्टीज़ नहीं है, लेकिन ये है कि मतलब कुछ खास बदलाव नहीं आया 370 टूटने के बाद। इवन चीज़ें बिगड़ी ही है, बदली मतलब कुछ अच्छाई की तरफ नहीं गई है। बिगड़ी कैसे है, मतलब 8 महीने वहाँ इंटरनेट बंद रहा। अब स्टूडेंट की बात आपने की, तो स्टूडेंट्स जो है जैसे ऑनलाइन यहाँ पे पढ़ाई होती है, वहाँ पे कहीं पे भी हालात ख़राब हो जाते हैं तो सबसे पहले नेटवर्क ही ख़त्म है। तो जो बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं तो उनका तो फिर ऑनलाइन क्लास सिस्टम ख़त्म है।
तो ये कर्फ्यू सिस्टम या रिस्ट्रिक्शन, नेटवर्क रिस्ट्रिक्शन, ये बाकी चीज़ें, तो इससे वहाँ का जो मतलब बच्चा है, जो वहाँ के मतलब तालिब इल्म है, उनको बहुत इस चीज़ का सामना करना पड़ रहा है। हालात कहीं पे भी ख़राब हो जाते हैं, कुछ भी हो जाता है, तो सबसे पहले मतलब एक टूल बना है मतलब वहाँ की अथॉरिटीज़ के लिए कि इंटरनेट बंद कर दो। इंटरनेट बंद करने से जो छात्र है, जो भी पढ़ते हैं, उनकी पढ़ाई पे बहुत असर पड़ता है। तो ये नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट को कोई और अल्टरनेटिव ढूंढना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो इंटरनेट ही बंद कर दे तो बच्चे इफ़ेक्ट होते हैं इससे। मतलब ये चीज़ें वहाँ को देखने को मिलती है कि मतलब वहाँ पे जो यहाँ पे जमहूरियत का कंसेप्ट है ना, ये मैं बताना चाहूँगा, वहाँ पे ये चीज़ें हम नहीं देख पाते हैं। जैसे कि वहाँ 8 बजे अंदर जाते हैं, तो यहाँ आपने देखा ही है, हम लोग भी यूनिवर्सिटी रात को लाइब्रेरी भी बैठते हैं, रात को कहीं पे भी आ जा सकते हैं, तो कोई मसला नहीं है हम लोगों का। लेकिन ये चीज़ें आप वहाँ पे नहीं देख सकते। वहाँ पे मतलब बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव सिस्टम है, लेकिन वहाँ लॉ एंड ऑर्डर करके फिर ये चीज़ें डिफ़ाइन की, इनको उसी तरीके से जस्टिफाई किया जाता है। लेकिन जो मेन वहाँ का जो युवा है, जो वहाँ के बच्चे हैं, जो पढ़ाई हासिल कर रहे हैं, वो बहुत मुतासिर होते हैं इन चीज़ों से, उनकी साइकी पे बहुत असर पड़ रहा है इन चीज़ों से। लेकिन ये अब गवर्नमेंट अटेम्प्ट कह सकते हैं इसको कि वो डिलिबरेटली कर रहे हैं इस चीज़ को, क्योंकि उन्हीं के हाथ में सारा है। वो अदर अल्टरनेटिव्स भी निकाल सकते थे इन चीज़ों के, लेकिन उन्होंने उस तरफ कभी तवज्जो नहीं दी है, उन्होंने इसी तरफ तवज्जो। तो इससे जो वहाँ का छात्र है, जो वहाँ के बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है उनकी पढ़ाई पे भी। ਫਹੀਮ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਟਰਬੂਲੈਂਸ ਰਹੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਈ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਟਰਬੂਲੈਂਸ ਦੇਖੀ ਆ ਉੱਥੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਬੜੇ ਕੇਸਿਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਰਮਡ ਸਟਰਗਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਹੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਆ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਉੱਥੇ ਟੋਟਲੀ ਕੋਲਾਪਸ ਹੋਇਆ, ਟੋਟਲੀ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਸ बाकी है? देखो, लेक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सबसे बड़ी बात लेक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम हैं। वहाँ मतलब बच्चे तो पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा कम है। वहाँ अभी भी मतलब पोस्टें चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की हो या जो लेक्चररशिप हो या बाकी जो क्लास 4th है वो है, निकालते तो मतलब एजेंडा तो है कि ये निकालते हैं, लेकिन वो भी बहुत कम तरफ पे निकल रही है। मतलब जैसे दावे किए जाते हैं, जैसे 317 इतनी नौकरियाँ देंगे, इतने नंबर थे, उनको खुद भी ज़ीरो नहीं गिनने आ रहे थे। लेकिन उसके बावजूद अब आप देखते हैं कि उसका अभी ग्राउंड पे देखिए कितना रिजल्ट है, मतलब नील है। मतलब उसका तो 1% भी नहीं फुलफिल हुआ है अभी तक। तो ये आप देख सकते हो कि मतलब वादे करना अलग बात है और मतलब ग्राउंड पे इस चीज़ को ले आना वो अलग बात है। ऐसे मतलब किसी को दबा के मुझे नहीं लगता कि ये कोई अल्टरनेटिव है, ऑप्शन है जीतने का। नौकरियां पोलिटिकल एस्पिरेशन का अल्टरनेटिव बन सकती हैं? पॉलिटिकल एस्पिरेशन इज द मेन रीजन बिहाइंड दैट सिचुएशन। देखो, ये प्रॉब्लम जो है पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। इसको मतलब नौकरियों के साथ तुलना नहीं कर सकते आप। वहाँ जो चीज़ें घटनी वो मतलब ड्यू टू पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस गई है। तो ये एक आइडियोलॉजिकल क्लैश है। तो इस चीज़ को आप आइडियोलॉजिकली डील करना पड़ेगा। इस चीज़ को आप किसी एम्प्लॉयमेंट के लिए या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके सही नहीं कर सकते। हाँ, अगर सही कर सकते हैं, वो वहाँ पे कोशिशें होनी चाहिए अमन लाने की। वहाँ के जो लोग हैं उनको जीतने की कोशिश। अमन कैसे आ सकता है आपके हिसाब से? लोगों से बात करो, लोगों को आप मतलब आपने असाइड करके रखा है, एक पर्टिकुलर सेक्शन है रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे मैं हूँ, मैं पूरे मतलब स्टूडेंटों को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। बहुत सारे लोगों को बहुत सारे नैरेटिव्स हैं उनके मन में, तो आई कांट बी द एब्सोल्यूट फॉर एनीवन। मतलब मैं एक सबको नहीं बता सकता हूँ। तो वहाँ एक पर्टिकुलर सेक्शन है मतलब जो इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन आम लोगों के साथ आप बात करिए। आप यहाँ से डेलीगेशन लेके जाते हो, उनको खाली डल में मतलब वो शेयर करा देते हो, उनको लोगों से मिलाओ, लोगों से के मतलब जानो कि लोगों के मन में क्या है। जब आप लोगों की बात जान पाओगे, जब आप लोगों का नैरेटिव जान पाओगे, तभी आप लोगों के साथ डील कर सकोगे। जैसे कल मैच था तो मतलब वो मेडिकल बच्चों को उन पे UAPA लगा लिया। एक ही केस है ये सारा 10। हाँ, ये भी मतलब जो UAPA मतलब कल जो मतलब ये शेर कश्मीर मेडिकल इंस्टीट्यूट में और जो मतलब वहाँ मेडिकल कॉलेज दूसरा है, वहाँ पे
जो मतलब जो भी बच्चे थे, मतलब पता नहीं, वो अभी मतलब पुलिस भी कह रही है हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि ये सही है कि नहीं है, अभी इन्वेस्टिगेशन कर ही रहे हैं, लेकिन यूएपीए लग गया। तो ये चीज़ें मतलब ऐसे मतलब संगीन मतलब लाज लगाना बच्चों पे, वो भी पर उन फिर भी बच्चों पे ਫਾਈਮ जो पढ़ रहे हैं। ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਐਨਆਰਆਈ ਆ, हाँ 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 ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਿਆ हाँ हाँ ਤੇ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ देखो ਕਰਦਾ, ये हाँ हाँ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ये ਕਿ नैरेटिव जो है, ये भी मैं पहले ही बताया कि पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, तो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को आप टारगेट कर रहे हो, तो ये तो एक सपोर्ट्स, अगर ये सपोर्ट्सशिप देखे तो ये कोई भी मतलब आप टैलेंट को कर सकते हो प्रमोट, लेकिन अगर ये बेचारा एक कश्मीरी किसी चीज़ को प्रमोट करता है तो इसको एज एन एंटी नेशनल, यही तो मतलब स्टेट भी आप डिफाइन कर रही है एंटी नेशनल क्या है, मतलब अब आपको एक स्टेट बोल रही है कि ये चीज़ एंटी नेशनल है, ये चीज़ एंटी नेशनल नहीं है। अदरवाइज डेमोक्रेसी है कि आपको पूरा हक है आपने, लेकिन हम देखो मतलब मैं जब इंडिया जीतती है हम उस टाइम भी बहुत अच्छे से करते हैं, चाहे पाकिस्तान जीते तो उनको भी अच्छे से मतलब अप्रिशिएट करते हैं। ये सपोर्ट्समैन का मतलब यही सपोर्टशिप जो है ये इंसान को जोड़ती है, ये डिवाइड नहीं करती। सपोर्ट्समैन जो होता है ये इंसान मतलब जो एक सपोर्ट्समैन होता है उसको कभी नहीं, हाँ रिलेशंस को मजबूत करता है। मतलब जो जैसे इंडिया पाकिस्तान ये मैच होने चाहिए और ज़्यादा होना चाहिए, इससे बॉन्ड अच्छा होगा दो मुल्कों का। जब इन दो मुल्कों का बॉन्ड अच्छा होगा तो हमारे भी हालात सुधर जाएंगे, हम इनके बीच में फंसे हुए। तो अब बाकी मतलब हम भी मतलब उम्मीद करते हैं चीज़ें अच्छी हो और अच्छाई की तरफ बढ़े, और उसी मतलब चीज़ पे हम बिलीव करते हैं। क्योंकि देखो मतलब हर टाइम मुझे नहीं लगता कि थ्रू वायलेंस यू कैन विन एनीवन, तो डायलॉग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लोगों से मिलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और स्टूडेंट्स जो बाहर आ रहे हैं उनको इत्मीनान देने की ज़रूरत है, उनको मतलब जीतने की ज़रूरत है, उनके साथ भाईचारा कायम करने की ज़रूरत है। उसके लिए हम पंजाब के लोगों का बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमेशा ये भाईचारे पे कोई मतलब नहीं आने दिए। अदरवाइज़ बाहर कोई कोशिश करता है कि ये टूटे, लेकिन पंजाब के लोगों ने इस भाईचारे को हमेशा मदद दिया है और सपोर्ट दिया है इस चीज़ को मजबूत करने में और इस चीज़ को बढ़ोतरी करने में। ਫਹੀਮ ਇੱਕ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਬੜਾ ਕਾਮਨ ਹੋਰ ਫੈਕਟਰ ਜੁੜ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਟਰਗਲ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਾਈਟਸ ਲਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਡਰੱਗਸ ਦਾ। ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਯੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਫੀ ਫਲਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ? देखो मतलब ये चीज़ें जो है मतलब ऐसा तो नहीं है कि मतलब इतना सर्विलेंस है, इतना गवर्नमेंट के पास अगर इतनी सिक्योरिटी है, जो गवर्नमेंट मतलब कहीं पे कोई मिलिटेंट या कोई भी कहीं पे छुपा हुआ है तो जब उसकी खबर रख सकते हैं, ये मतलब पॉसिबल नहीं है कि मतलब किसी भी स्टेट में ये चीज़ें आए मतलब बिना इन चीज़ों को। तो दैट मीन्स सरकार को पता है सब कुछ, पता मैं नहीं कह सकता हूँ, दैट मीन्स कि मतलब कहीं ना कहीं सिक्योरिटी में या मतलब जो भी मतलब इन चीज़ों में कहीं ना कहीं लूप है जहाँ से ये चीज़ें इन कर रही है, और इस चीज़ से हमारी जनरेशन्स इफ़ेक्ट हो रही है। और मतलब ये चीज़ अगर वहाँ पे रही तो वहाँ बहुत बुरा हाल होगा। आपने पंजाब में भी देखा है कितना सुसाइड रेट है ये चीज़ों पे। तो हम नहीं चाहते कश्मीर में ऐसा हो। अभी कश्मीर में ठीक चल रही हैं चीज़ें, शुक्र है मतलब अल्लाह ताला का, मतलब चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। मतलब इन टर्म्स में मैं कि मतलब इतना मतलब वहाँ पे नहीं हुआ है, अभी शुरुआत, हाँ अभी शुरुआत है। लेकिन अगर इस पे अभी मतलब कंट्रोल किया जाए तो बहुत अच्छी बात होगी और बहुत ही इत्मीनान होगा वहाँ के लोगों का भी। और ये भी एक अटेम्प्ट हो सकता है अथॉरिटीज़ की तरफ से कि इस चीज़ को रोके और मतलब जो मतलब पीस की तरफ और अमन की तरफ और प्यार की तरफ लोगों को लाए, ना कि इन चीज़ों की तरफ। और ये चीज़ ओनली एंड ओनली पॉसिबल है एक दूसरे के साथ बात करने से, ताकि एक दूसरे को हम जान पाए और एक दूसरे से हम अच्छे से ये चीज़ें डिस्कस करें, तभी हम किसी हल पे पहुंच जाएंगे। जब तक हम एक दूसरे के साथ बात नहीं करेंगे तब तक हम नहीं पहुंच सकते किसी भी अच्छे नतीजे तक। ਫਹੀਮ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਦਾ ਮਰਡਰ ਜਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ। ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਕੈਜੁਅਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਆ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ
ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਿਕਿਉਰ ਨੇ ਜਾਂ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਨੇ, ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ? देखो, मैं अपनी मतलब बात करूँगा, हम भी जानते हैं, हमारे भी इर्द गिर्द सिख है, मुसलमान है, हिंदू है, हमारे बीच में कभी ये बात नहीं उठती। हम जैसे रहते हैं बिल्कुल एक दूसरे के साथ मतलब भाई बन के रहते हैं। जैसे यहाँ पे भी हमारे कितने कश्मीरी सिख्स हैं या कश्मीरी हिंदूज हैं जो हम इधर ही पढ़ते हैं, लेकिन कभी हमें ये नैरेटिव नहीं देखने को मिलता है। मतलब हम बहुत ही अपने भाईचारे से रहते हैं, बहुत ही खुशी से रहते हैं, हमें कभी इस चीज़ पे वो नहीं है। और हम हमेशा एक दूसरे को अपनी मतलब ताकत मान के चलते हैं। जैसे सिख हो, चाहे पंडित हो, चाहे मुसलमान हो, हम कश्मीर में जब रहते हैं तो हम एक दूसरे का ताकत बन के रहते हैं। हम एक दूसरे के ऊपर उंगली उठा के नहीं चलते हैं। लेकिन जो बाहर मीडिया नैरेटिव है वो कुछ अलग है, ये कुछ अलग है। और जो अभी आपने बोला वहाँ किलिंग्स हुई, ये अटेम्प्ट ऑफ टेररिज्म है। इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, इसको हम मतलब ऐसे जस्टिफाई नहीं कर सकते। ये गलत है और गलत बात को गलत ही कहना है। लेकिन कश्मीरी जो आम कश्मीरी है, जो अवाम है, वो एक दूसरे के साथ चलने पे विश्वास करते हैं, क्योंकि कश्मीरियत जो है वो भाईचारे पे कायम है, वो नफ़रत पे कायम नहीं है। जैसे यहाँ पे नैरेटिव नफ़रत का क्रिएट किया जा रहा है, जैसे भी कि ये मतलब दुश्मन है, हमारे कश्मीर में ऐसा कुछ नहीं है। हम एक दूसरे के साथ मिल के रहते हैं और हंस के रहते हैं। और इस चीज़ पे हमारा भरोसा है कि हम एक दूसरे से हैं। ये नहीं कि हाँ वो हमारे से है या हाँ हम एक दूसरे से हैं। जब तक हम एक दूसरे के साथ हैं तब तक हमारी कश्मीरियत बनी है। लेकिन जो अब अटेम्प्ट्स हो रहे हैं इसको बिगाड़ने की, वो बहुत ही मतलब शर्मनाक है और हम उसका बिल्कुल मतलब विरोध करते हैं, वो जस्टिफाइबल नहीं है। लेकिन ये कहना कि वहाँ पे सिख मतलब सेफ़ नहीं है या पंडित सेफ़ नहीं है, ये गलत है। इस चीज़ को हम मानते नहीं। ये एक मीडिया नैरेटिव और पॉलिटिकल नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है ताकि नफ़रत फैलाई जाए। लेकिन ये हकीकत में आप ग्राउंड लेवल पे हम भी वहीं रहते हैं, तो हम एक दूसरे से का निवाला एक दूसरे के मुंह से निकाल के खाते हैं। ये है हमारा भाईचारा। हमारा भाईचारा कभी नहीं एक दूसरे के खिलाफ नफ़रत है। बाकी आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, मतलब हिंदुस्तान में भी आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो ये चीज़ क्रिएट करते हैं। कि मैंने आपको पहले भी बोला है, पूरे इंडिया को हम ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते। यहाँ पे ये चीज़ें कुछ तबका होता है, कुछ मतलब जो ग्रुप होता है वो हमेशा नफ़रत को फैलाने का काम करता है। लेकिन कश्मीर में ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ के लोग जो है वो हमेशा जो मतलब हमारी मुस्लिम, सिख एंड हिंदू मतलब बरादरी है, उसकी यूनिटी पे हम जोर देते हैं और हमेशा देते रहेंगे। कोई भी हालात हो तो हम एक दूसरे के लिए वहाँ जीते हैं, ना कि एक दूसरे को वहाँ नफ़रत के लिए जीते। तो हम एक दूसरे से हैं, ना कि कोई हमसे है या हम उनसे है। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਫਹੀਮ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਆ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫਹੀਮ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਆ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਲਾਮ।